हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रिपल ए भी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करती हूँ मैं। सो आज की वीडियो हमारी जो रहेगी वो रहेगी ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। हमने डे 3 और 4 में अपना कंप्लीट लेक्चर कर लिया है, बिजनेस रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Now it's day 5 and we have to understand the audit procedure and we will write one of the audit procedure. So, okay, let's start our video. As we decide yesterday that we will complete the Hammer group. So, in Hammer group, there is a part C. Yes, part C, which is to state that using Exhibit 4, design the principal audit procedure to be performed in respect of the expenditure relating to the store enhancement program. So हमें क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स को राइट करना है, डिजाइन करना है, जो किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम। मीन्स कि जो एक्सपेंडिचर हमने स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम पे किया है उसको हम जज करने के लिए कि जो हमने मतलब उसमें जो हमने रिकॉर्ड किया है, मीन्स जो भी मैंने कैपिटलाइज किया अमाउंट, जो भी मैंने, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा अमाउंट रिकॉग्नाइज किया है, कॉस्ट रिकॉग्नाइज किया है, क्या वो सही है, उसको देखने के लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें ये बताना है। सो हम अपना एग्जिबिट 4 देखते हैं। एग्जिबिट 4 क्या कह रहा था हमारा? एग्जिबिट 4 ये रहा। तो एग्जिबिट 4 हमारा क्या कह रहा है? स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो इन फेब 2015, लेट्स suppose it is 2015. In Feb 2015, the group started a program of extending and renovating all 25 of the Milletco larger hardware stores, which will become destination stores, and each will have a cafe or restaurant. The program is expected to cost $5.75 million per store. At any one time, 5 stores are closed while the renovation and necessary construction work take place, and on an average, a store will be closed for 2 months while the work is carried out. Okay, so this is our store enhancement program which was carried out by the group. Okay, so अब हमें करना क्या है, हमें इसके ऊपर हमें ऑडिट प्रोसीजर देखने हैं, हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं एक एस्टिमेट लगा पाऊं कि जो भी हमने कॉस्ट कैपिटलाइज किया है या फिर जो जो भी मैं एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर रही हूँ क्या वो करेक्ट है या नहीं है, या फिर जो भी मैं स्टोर को मैं एनहांस कर रही हूँ उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो भी रही है या नहीं, वो एक्चुअल में एनहांस हो भी रही है या नहीं, जो भी मैंने कॉस्ट इनकर्ड किए क्या वो कॉस्ट सही इनकर्ड की गई है, मीन्स किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं लगाई जा रही वो कॉस्ट जिस जिस कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ। सो ये मैं क्या है, मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती हूँ ये देखने के लिए कि मेरी कॉस्ट जो मैंने कैपिटलाइज की है या फिर जो एक्सपेंस किया है वो सही की है या नहीं की है। सो मैंने इसको नीचे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया है। सो yes, I have copy pasted store enhancement program, and this is I have taken from the question. Okay, so audit procedure में आप क्या क्या follow कर सकती हूँ? Firstly, I am saying that I am not saying that there is a fixed method of calculating, means of writing the audit procedure. There is no method which I can give you for writing the audit procedure, just like ROMM and business risk. I know that there is a proper method for how to identify the business risk and how to identify the risk of material misstatement, and there is a proper way then how to write a risk of material misstatement or business risk or while there is a audit risk. So, but there is no proper way of how to write the audit procedure. It is totally depend on the examiner and us, and how we write our audit procedure, how identify that I have to perform which audit procedure, so that I can identify that amount recognized or that there is that the asset might be exist, means it is totally depend on us. So I will give you some example like how we can recognize and how
we perform the audit procedure in respect of the store enhancement program. So firstly, like we all know that the company group has started the program of extending and renovating all 25 of the Millet Co larger hardware store. So firstly, what can I do? I can think in mind that क्या मैं ऑब्टेन कर लूँ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट, अगर मैं ऑब्टेन कर लूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जो ये एक्सपेंडिचर है वो कंपनी के द्वारा किया भी गया है या नहीं किया गया है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रोग्राम, ऑब्टेन द रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट। मैं क्या कर सकती हूँ एज अ ऑडिटर? मैं क्लाइंट को कह सकती हूँ कि तुम मुझे एक ऐसे डॉक्यूमेंट दो जो मुझे ये विश्वास दिलवा दें कि तुमने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है वो वाकई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मेरे को नहीं पता इसमें मतलब मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं, बट मेरे माइंड में क्या हिट किया कि अगर एक कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है तो मैं क्या उसके उसको पता लगा सकती हूँ कि कंपनी ने एक्चुअल इनकर किया भी है वो नहीं किया है। तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? ऑडिटर क्या कंपनी से क्या डिमांड कर सकता है कि वो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे जिससे ये प्रूव हो जाए कि कंपनी ने एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है नहीं किया। तो टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रोग्राम, ये समझने के लिए कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअल इनकर्ड किया है या फिर प्रोग्राम को जानने के लिए उनके एन ऑडिटर कैन डिमांड फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट। ओके, सो दिस वे वी कैन डेवलप आवर पॉइंट easily. So next one, like if I am saying that the company's means the company is expanding and renovating 25 of the Maletco hardware store. So at the year end, every auditor wants to know whether the company has renovate all of the store at the year end or not. If all of the store is renovating or not. So in that case, what can I do? I can discuss with the management to form an understanding on the progress made on the program by the year end. मैं ईयर एंड पे क्या कर सकती हूँ? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकती हूँ कि कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारे प्रोग्राम में, ताकि मैं जान सकूं कि हम कितना रेनोवेट कर चुके हैं एट द ईयर एंड। दैट इज हाउ मेनी ऑफ द 25 स्टोर आर फुल्ली रिनोवेटेड, हाउ मेनी आर क्लोज डाउन फॉर रिनोवेशन। हम ये भी जान सकते हैं कि इस टाइम कितने स्टोर जो है हमारे वो बंद है, क्योंकि हमें क्या कहा गया है? ऑन एन एवरेज 2 months a store will be closed for 2 months while the work is carried out. So हम ये भी जान सकते हैं कि कितने स्टोर इस टाइम हमारे क्लोज्ड हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टोर ऑन विच द रेनोवेशन वर्क हैज नॉट बीन कमेंस्ड। कितने ऐसे स्टोर हैं जिन पे अभी रेनोवेशन का काम स्टार्ट ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके से मैंने एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया कि मैं किस तरह से जान सकती हूँ कि कंपनी क्या क्या कुछ चल रहा है स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम को लेके। थर्ड वन क्या कर सकती हूँ मैं? अभी मान लो मैं कह रही हूँ कि एक प्रोग्राम के ऊपर जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही है मेरी वो 5.75 मिलियन पर स्टोर आ रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं देख सकती हूँ कंपनी ने अब तक कितनी कॉस्ट इनकर कर ली है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। कंपेयर द कॉस्ट इनकर टू द डेट। अब मैं क्या कर रही हूँ? जो मैंने कॉस्ट इनकर कर रही हूँ कंपेयर आज तक की डेट में जितनी भी कॉस्ट हमने इनकर हम कर चुके हैं उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक अप्रूव कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट से प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी। एंड अगर हमें कोई डेफिशिएंसी अराइज होती दिख रही है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जो मैं इनकर करने लग रही हूँ पर स्टोर के ऊपर, क्या मेरी वो एक्चुअल मींस कि क्या वो अप्रूव्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। तो इस और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो मैं उसको ऑब्वियसली बात है मैं एम्प्लॉय से डिस्कस कर सकती हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर से, कि इसमें डेफिशिएंट मींस कि इसमें सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस क्यों आने लग रहा है, क्यों इसमें वेरिएंसेस अराइज होने लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ? अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकती हूँ। हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे पता चलाना है कि मेरा स्टोर एक्चुअल में एग्जिस्ट जो मैं करने लग रही हूँ रेनोवेट या एक्सपेंडिंग प्रोग्राम जो भी मैंने स्टार्ट किया है, क्या वो एक्चुअल में होने भी लग रहा है या नहीं। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं फिजिकली जाके चेक कर सकती हूँ। एक ऑडिटर क्या कर सकता है? फिजिकली जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। तो क्या कर सकती हूँ मैं? अरेंज टू फिजिकली इंस्पेक्ट द सेवरल स्टोर टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर रेनोवेशन एट द ईयर एंड। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकती हूँ किसी भी स्टोर को जाके कि एक्चुअल में रेनोवेशन
हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, अगर कोई ईयर एंड पे कोई स्टोर है, मान लो वो रेनोवेट होने लग रहा है, अब मैंने फिजिकली इंस्पेक्ट कर लिया, मैंने सोचा कि हाँ यार एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मीन्स एग्जिस्टेंस तो है रेनोवेशन की, लेकिन अब कुछ स्टोर ऐसे भी पाएंगे ना जो ईयर एंड पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, वो रेनोवेट हो रहे होंगे, और हो सकता है हमने उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट ही एज कैपिटलाइज कर दी हो या फिर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लियो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर एनी स्टोर बीइंग रेनोवेटेड एट द ईयर एंड obtain a stage of completion certificate from the building contractor to allow an assessment of the cost capitalized। मैं क्या कर सकती हूँ, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से क्या कर सकती हूँ, पता चला सकती हूँ कि अब तक जो कितनी जो हमारा कंप्लीट हो चुकी है, रेनोवेट कितनी हो चुकी है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉस्ट को क्या कर पाऊँ, कैपिटलाइज कर पाऊँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं जैसे कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह को परफॉर्म कर सकती हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि जो मैं एक्चुअल कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, कैपिटलाइज कर रही हूँ, वो सही है या नहीं है। और अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है, अगर कोई वेरिएंस राइज होता है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकती हूँ टू आइडेंटिफाई वेदर द कॉस्ट कैपिटलाइज इज एक्चुअल इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो इस तरह से मैं एक क्या कर सकती हूँ, सब्सटेंसिव प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकती हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि जो एक्चुअल कॉस्ट रिकॉग्नाइज हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। अब नेक्स्ट वन मैं क्या कर सकती हूँ, मीन्स आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मैं नहीं कह रही कि ये स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम को लेके जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, या फिर मैं मेरे को अगर किसी और चीज के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहा जाए, तो वो हर केस में सेम नहीं हो सकता, वो हर केस में डिफर पाएगा, हर एक केस में कंडीशन अलग दी पाएंगी। ये टोटली एंड टोटली डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें, ताकि हम एक चीज जो हमें कहा गया है उसके बारे में हम पता चला सकें। तो मीन्स मैं अब मेरे लिए भी अगर मेरे सामने भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मेरे लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट है। एक एक अगर एकदम मुझे कहा जाए कि मुझे इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारे माइंड में डेवलप करेगा कि हम किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके। अब जैसे हमें धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि मैं मेरे को अगर स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम के लिए कहा जा रहा है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे दिख रहा है कि स्टोर अगर रेनोवेट हो रहा है, तो अगर हो सकता है वो रेनोवेट ही ना हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फिजिकली एक्सिस्टेंस चेक करने के लिए जा सकती हूँ, एक फिजिकली कंडक्ट कर सकती हूँ इंस्पेक्शन। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि ईयर एंड पे हो सकता है इन्होंने तो पूरी अमाउंट ही कैपिटलाइज कर दी हो, लेकिन कुछ स्टोर तो अभी रेनोवेट हो रही हो, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को के साथ बात कर सकती हूँ, जो मुझे क्या देगा कि कितना अभी कंप्लीट हुआ है हमारा काम, वो मुझे उसके बारे में बताएगा। तो इस तरीके से मैं अपने माइंड को डेवलप कर सकती हूँ धीरे धीरे, कि मैं कि इस चीज को लेके मैं क्या परफॉर्म कर सकती हूँ, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा सकती हूँ। हमें खुद को एक ऑडिटर मान के चलना होता है कि हम एक ऑडिटर हैं और हम किसी क्लाइंट की क्या कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे, तो हम इजीली सोच पाएंगे कि हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इस केस में। अब नेक्स्ट वन जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर हमें ये पता चलाना है, चलो अभी हम ये पॉइंट छोड़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मुझे ये पता चलाना है, लाइक रिव्यू एनी रेलिवेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल फ्रॉम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, एंड डिस्कस एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अमाउंट कैपिटलाइज। ऑब्वियसली अगर हम एक रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी, हमें आर्किटेक्ट्स वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके जो उन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, और हो सकता है जो एक्चुअल में जो अमाउंट हमने फिक्स किया बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ और जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उन डेविएशंस को, अगर कोई आ रही है किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें कहा गया है, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल ओवर द क्लासिफिकेशन। हाँ, अभी हमने जैसे ऊपर क्या पढ़ा था, हमने जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड किया था, हमने यही तो फाइंड किया था कि कंपनी ने ओवर स्टेटेड की हुई थी अपनी एसेट, और अंडर स्टेटेड की हुई थी अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अच्छा दिखाना चाहता था, क्योंकि उन्हें बोनस चाहिए था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब हम
देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास तो ये इंसेंटिव है ना कि वो अपने बोनस को दिखाने के लिए वो एसेट को ओवरस्टेट करेगा, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर सकते हैं। टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल over the classification of cost between the capital and revenue expenditure by reviewing a sample of invoice from the both classification and agreeing the nature of the cost। तो इस तरह से हमने क्या माइंड हमारे माइंड में क्या आया कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ओवरस्टेट एसेट को ओवरस्टेट करने की, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डायरेक्टर का बोनस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह मेरे माइंड में क्या हिट किया कि हो सकता है यार इन्होंने तो इनके इंटरनल कंट्रोल सही ना हो, तो मैं क्या करूंगी, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करूंगी कि कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकती हूँ मैं। और वो कैसे चेक कर सकती हूँ, किसी भी सैंपल ऑफ इनवॉइस से जो उन्होंने की है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके। तो इस तरह से हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी ऑडिट, हर एक केस में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का मेथड अलग पाएगा, किसी भी केस में ये सेम नहीं होगा। बट ये है हमें जो कहा गया है, जिस चीज के ऊपर हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, हमें एक बार उसको दोबारा पढ़ लेना होता है। अभी जैसे मैंने स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम को लेके था, तो मैंने इसको एक बार अपने माइंड में बिठाया। मैंने देखा कि हाँ, कंपनी इतना एक्सपेंडिचर कर रही है और ये रिनोवेशन को लेके था, और इसमें 5 स्टोर एक टाइम पे क्लोज किए जा रहे थे, और हर एक स्टोर 2 महीने तक बंद रहेगा। तो मेरे माइंड में पॉइंट डेवलप होते गए। मेरे माइंड ने कहा कि अगर एक स्टोर डेवलप हो रहा है और अगर वो कितने टाइम तक बंद हो रहा है एक स्टोर, तो मैं उसको लेके एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती हूँ। मेरे माइंड ने कहा कि अगर ये एंड पे अगर मैं रेनोवेशन कर रही हूँ तो हो सकता है कि पूरी की पूरी कॉस्ट कंपनी ने कैपिटलाइज कर दी हो, तो मैं उसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती हूँ कि मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ सकती हूँ। अगर मुझे चेक करना है कि फिजिकली एग्जिस्ट कर भी रही है रेनोवेशन या नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे ये पता करवाना है कि कंपनी ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट किया है वो सही है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट मांग सकती हूँ कंपनी से। तो इस तरह से मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या एक ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, ताकि वो पता लगा पाए कि कंपनी ने जो कॉस्ट इनकर्ड किया या फिर जो भी केस है वो एक्चुअल एप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो इस तरह हम अपने ऑडिट प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। वन एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन करने का 1 मार्क्स होता है। सो आई हैव डिफाइंड 7 ऑडिट प्रोसीजर बिकॉज इन दिस केस देयर इज 7 मार्क्स अवेलेबल फॉर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन स्टोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम। सो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। यस, सो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। सो अब हमारा लास्ट जो रह गया है वो रह गया है हमारा एथिकल इशू। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एथिकल इशू पे होगा, और उसमें भी हम हैमर ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। ऐसा करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हैमर ग्रुप कंप्लीट क्वेश्चन 50 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन प्रैक्टिस करी, दूसरे दिन नहीं करी, तीसरे दिन करी, फिर फोर्थ डे नहीं की। हमें प्रैक्टिस जो अपनी है वो रेगुलर करनी पड़ेगी, ताकि हम अच्छे से डेवलप अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ कि 50 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। और उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट आईएससी जो हैं वो आपको बताऊँगी, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।